Hello friends. Now we will discuss question number 15 of GS Mains paper 2. So question number 15 is about the constitutionalization of a commission. So this is the part number 1 of the question number 15. So that means how can we grant the constitutional status to a commission. So constitutionalization of a commission means erstwhile statutory or executive authority has been transformed to changed has been granted the constitutional status. So how to do that? So what are the steps required for constitutionalization of a commission? And second is about the National Commission of Women. So it is asking whether granting constitutional status to National Commission of Women, whether it can ensure more gender justice and empowerment of women. So we need to substantiate our answers with arguments, pro arguments and anti arguments. So both sides, so positive as well as negative arguments in granting the constitutional status. Whether it will give more teeth to NCW, and what are the issues if even if it granting constitutional status, whether still some lacunas will be left in the NCW. So we'll be discussing that part also. So starting with the answer, constitutionalization means granting constitutional status of to a commission. So constitutionalization can only be granted to a commission by utilizing the power or authority granted under Article 368 of the Constitution. So Parliament utilizing the power granted under or given under Article 368. Okay, so Article 368, it mentions the amending the authority of the Parliament and its procedure. So authority of the Parliament to amend the Constitution and its procedure. So Article 368 mentions the procedure of amending the Constitution. So to amend the Constitution, a constitutional amendment bill has to be introduced in both the houses of the Parliament, in both the houses separately, Lok Sabha as well as Rajya Sabha. In either of the houses it can be presented, and in both the houses it should be passed by special majority in both separately. So both in Rajya Sabha as well as Lok Sabha it should be passed by special majority. And what do you mean by special majority? Majority of total membership of the house. Majority of, so what is special majority? Majority of total membership of the house है ना. तो टोटल मेंबरशिप कितनी है लोकसभा की 552 एंड इसकी कितनी है 245. ओके, सो 552 to 45. So 552 का majority of total membership, that is 276. So 276 is the halfway mark. So if 277 members approve this bill, then it is passed by the majority of total membership of the house plus majority of not less than 2/3 of the members of the house present and voting. So what does it mean? It means, so if for example 100 members are present, then 100 members का 2/3 कितना हुआ? That is 2/3 of 100, and this 66. So around 66 members should be, if 100 members are present, so out of 100, 66 should be supporting the bill. Similarly in Rajya Sabha also. So this is the procedure of special majority. So after it is passed by Lok Sabha as well as Rajya Sabha separately by special majority. So because it is a national commission of, it is a commission, constitutionalization of a commission है ना, commission. So commission जैसे अभी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन किया था, या फिर अगर आप वुमेन को कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन करेंगे, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन को, या नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स को,
नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट्स, एनसीपीसीआर, जो कि अभी भी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है. सो ये तो हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल, बट वुमेन प्लस एनसीपीसीआर स्टिल दे आर स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज. तो कोई भी कमीशन को अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन करोगे, एंड बिकॉज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कमीशन हैज बीन influenced or has been affecting the federal provisions of the constitution also, because if you take the example of National Commission for Women, so National Commission for Women is the is for is to ensure the welfare of the women, and to so it is the responsibility of National Commission of Women to ensure the welfare of women around the territory of India. So because it is influencing the working of state also, because women, so welfare of women is also comes under the ambit of the state. So National Commission of Women, or protection of children rights also, children, National Commission for Children also. So any national commission, because its working has it's been influencing the federal provisions of the constitution, because it is influencing, or it is being set up for the welfare of the sections of the society, which definitely comes under the purview of the state also, because it is the duty of the state also to ensure the welfare of the citizens. So both this center as well as state. So National Commission of Women, or granting constitutional status to National Commission of Women, because it has to make the policies. But because National Commission of Women recommends to the government the policy, lacuna in the policy, and how their welfare can be ensured, and because its mandate is influencing the mandate, the working of the state also. So therefore the bill must be ratified by, so majority, special majority of both the houses. So if you I'll write in some bold letters. So special majority of both the houses इससे पास हुआ, प्लस ratification by 50% of the states. स्टेट से भी 50% ऑफ द स्टेट, मतलब अभी हमारे country में around it is around 27 states are there. So ratification by 50% of the state, that means 13. So 27 का मतलब 13.5, ठीक है ना. So ratification by 50% of the states, so 30.5 is rounded to 14. So 14 states must be ratified by simple majority in their assembly. ठीक है, उनकी असेंबली, इन देयर असेंबली. काउंसिल की जरूरत नहीं है, असेंबली में ही पास कर दो बस बिल, और भाई स्पेशल मेजोरिटी. तो अगर स्पेशल मेजोरिटी ऑफ बोथ द हाउसेस प्लस ratification by 50% of the states, that is 14 states by simple majority in their assembly. So if it is done in this sense, if it is passed by both the houses as well as the assemblies, 50% of the assemblies, then the bill be deemed as passed, or the constitution be amended. So the constitutional status, so after it is being ratified, so it goes to the president, and after presidential assent, because president is bound to give its assent to the constitutional amendment, so president has to give his assent to constitutional amendment. So after getting the presidential assent, the constitutionalization of a commission is complete. So this is the procedure of constitutionalization of a commission, plus presidential assent, who is bound to give his assent because he cannot return the constitutional amendment bill. So this is the procedure of constitutionalization. Now we will discuss whether granting constitutional status to National Commission of Women, what are the pros and cons of it, and whether it gives more teeth to the National Commission of Women or not.
So National Commission for Women, which is called in short NCW. Now, National Commission of Women has been set up by an act of the Parliament, which is the uh, so, passed in 1992 or 1993. That is the uh, Protection of Women Rights Act. So I don't remember the exact act, but it is something related to that. So that is a statutory authority. So Protection of Women Rights Act, which is 1992, and through this act, Protection of Women Rights Act, Protection of Women Rights Act 1992, thereby setting up the National Commission for Women. So National Commission of Women has been set up under this act. So that is why it is a statutory authority. Now, what are the present issues with this authority? We will first analyze, and then we will see what if granting constitutional authority status to this commission, whether it will give more powers or not. ठीक है, हम देखते हैं present issues. पहले इसकी मैंडेट पढ़ते हैं, देन वी विल डिस्कस द प्रेजेंट इश्यूज. ठीक है. मैंडेट, इसका मैंडेट क्या है? टू रिव्यू, इसका मैंडेट है टू रिव्यू द एग्जिस्टिंग लॉज एंड पॉलिसीज इफेक्टिंग दी वुमेन. ठीक है ना, सिंपल सिंपल शब्दों में समझते हैं. टू रिव्यू दी एग्जिस्टिंग लॉज एंड पॉलिसीज इफेक्टिंग दी वुमेन, उनको रिव्यू करना है जो भी अभी लॉज है और पॉलिसीज है. ठीक है, उसको रिव्यू कर लिया. रिव्यू करने के बाद टू सजेस्ट, सजेस्ट करना है बस, करना खुद भी कुछ नहीं कर सकते. टू सजेस्ट टू द गवर्नमेंट अबाउट the necessary reforms required in the existing laws and to about the necessary reforms required in the existing laws and to make new laws and policies, है ना, एग्जिस्टिंग में रिफॉर्म्स एंड टू मेक न्यू लॉज एंड पॉलिसीज फॉर देयर वेलफेयर. ठीक है ना, ये है, ये भी मैंडेट है, रिव्यू करना और साथ में सजेस्ट करना गवर्नमेंट को कि क्या भी चेंजेस करने पड़ेंगे आपको उनके वेलफेयर के लिए. उसके अलावा ये आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. देन व्हाट एल्स, कुछ सो मोटो भी लेता है कॉग्निजेंस. तो थर्ड, टू टेक सो मोटो कॉग्निजेंस of the issues affecting the women. ठीक है, कोई भी इशू अगर ऐसा है नेशनल में, नेशन में, देश में, जो कि वुमेन को इफेक्ट कर रहा है, इन जनरल एंड इन पर्टिकुलर, इन जनरल एंड इन पर्टिकुलर, बोथ वुमेन इन जनरल एंड इन पर्टिकुलर. सो कोई भी अगर इशू होता है, कोई भी अराइज होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कहीं कोई सेक्सुअल असॉल्ट होता है, रेप होता है, या फिर उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है, या फिर उन कहीं भी फॉर एग्जांपल डाउरी रिलेटेड हरासमेंट है, कुछ भी, एनी इशू. सो इट टेक्स सो मोटो कॉग्निजेंस, मतलब कहीं भी कोई इशू होता है तो उसका कॉग्निजेंस ले सकता है. कॉग्निजेंस मतलब ये इट कैन, इसका मतलब क्या है, इट कैन डिमांड
टू डिमांड रिपोर्ट फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। ठीक है ना, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी से रिपोर्ट डिमांड कर सकता है। अब करने के बाद क्या होगा, क्या कर सकता है, कर रिपोर्ट ले ली, उसके बाद क्या कर सकता है, टू सजेस्ट appropriate action to executive authority to take against the perpetrator, against the crime perpetrator of crime against women। ये क्या कर सकता है, सजेस्ट कर सकता है टू टेक अप्रोप्रिएट एक्शन टू बी टेकन अगेंस्ट द परपेट्रेटर ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमन। कोई भी क्राइम होता है तो ये अप्रोप्रिएट एक्शन क्या लेना चाहिए, वो सजेस्ट कर सकता है टू द अप्रोप्रिएट एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। फॉर एग्जांपल पुलिस को ये सजेस्ट कर सकता है या गवर्नमेंट को सजेस्ट कर सकता है, एंड ये सबमिट भी करता है गवर्नमेंट को रिपोर्ट की। गवर्नमेंट इससे भी रिपोर्ट ले सकती है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन से कि भाई ये लार्जर इशू में क्या करना चाहिए, तो गवर्नमेंट इनसे भी रिपोर्ट ले सकती है और ये सो मोटो भी कॉग्निजेंस लेते हैं। तो मोटा मोटा देखा जाए तो इनकी सजेशन वाली पावर है, एडवाइजरी पावर्स हैं। अब ये आपने समझ लिया, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि इश्यूज क्या है इनकी। अब क्योंकि आप देख रहे हैं एडवाइजरी पावर्स हैं, कोई बाइंडिंग पावर्स नहीं है, तो यही सबसे बड़ा इशू है। सो इश्यूज विद द प्रेजेंट पावर्स ऑफ द कमीशन। So issues with the present powers। क्या इश्यूज हैं, ए रिकमेंडेशंस नॉट बाइंडिंग, है ना, कुछ भी कहा बाइंडिंग नहीं है, रिकमेंडेशंस बाइंडिंग नहीं है इसकी। मेड अ प्योरली एडवाइजरी बॉडी, है ना, एडवाइजरी बॉडी है, एडवाइजरी बॉडी की तरह बनाई हुई है इसको। इट हैज बीन मेड अ प्योरली एडवाइजरी बॉडी। सी नो स्टाफ, no power या no authority to appoint its own staff। ठीक है ना, स्टाफ को अपॉइंट करने की अथॉरिटी इसके पास नहीं है। सो इट हैज टू डिपेंड अपॉन द स्टेट गवर्नमेंट टू यू नो टू प्रोवाइड द नेसेसरी स्टाफ फॉर इट्स वर्किंग, और नहीं तो स्टेट गवर्नमेंट के पास इसे बार बार जाना पड़ता है। जस्ट अ मिनट। डी कैन नॉट, सो डी ऊपर लिखता हूं मैं, है ना, कैन नॉट एनफोर्स इट्स ऑर्डर्स। कुछ भी अगर ये ऑर्डर करेगा तो ये एनफोर्समेंट नहीं हो सकता। There is no mechanism to enforce its orders। Has to depend upon police to investigate the crime। कोई भी अगर सो मोटो ले लिया तो इसको फाइनली पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेट किया है उसके ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ेगा। कोई खुद से ये
इन्वेस्टिगेशन नहीं करा सकता क्योंकि स्टाफ ही नहीं है इसके पास, और ये अपने अपने ऑर्डर्स एनफोर्स ही नहीं करा सकता। मान लीजिए किस टाइप के ऑर्डर्स एनफोर्स नहीं करा सकता, मान लीजिए किसी को ऑर्डर करता है कि यू हैव टू बी प्रेजेंट बिफोर द कमीशन। किसी को ऑर्डर किया यू हैव टू प्रेजेंट बिफोर द कमीशन ऑन दिस डे, दिस डेट एंड दिस टाइम। So if the person to whom it orders to be present before it, so if the person doesn't obey that order, so there is no mechanism that National Commission for Women can enforce its orders, because अगर वो नहीं आता है तो उसको दोबारा नोटिस देगा, 2 बार 3 बार नोटिस देगा। So it cannot do it doesn't do anything, it cannot issue warrant, इसके पास वारंट वाली पावर्स नहीं है, पुलिस वाली पावर्स नहीं, it cannot issue warrant, and it also cannot approach court for the against the person and it depends on the cognizance of the court. If court wants, then court can order the person to be present before the women National Commission for Women. So National Commission of Women itself does not have any authority to enforce the attendance of any person before it in relation to any case. So cannot enforce his orders. इसमें आप लिख सकते हैं which orders, if like for example to ensure attendance of a person before it, to ensure attendance of a person before it, has to depend upon police to investigate the crime. And the last issue, lack of funds. फंड्स ही नहीं है भैया, जब फंड्स ही नहीं होंगे तो काम कैसे होगा? गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है फंड्स के लिए। इसको गवर्नमेंट फंड देगी तो कुछ काम होगा, नहीं देगी तो खत्म, जीरो, कोई काम नहीं होगा, बैठे हैं सीट पे, काम कुछ नहीं हो रहा। तो आप देख सकते हैं प्रेजेंट स्टेटस ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन इज टूथलेस कमीशन, कि कमीशन है बट कुछ कर ही नहीं सकते, कोई पावर नहीं है, एडवाइजरी पावर है। नाउ अब ग्रांटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देंगे तो क्या इशू होगा, क्या पॉजिटिव्स होंगे, और फिर उसका कुछ लेकिनाज भी पढ़ेंगे हम। सो ग्रांटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, सो यू राइट इट डाउन, ये तो आपने लिख लिया होगा, सिंपल है, मुश्किल नहीं है। Granting कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, इससे क्या होगा? अब क्या होता है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस आपने किसी भी कमीशन को दे दिया तो एक तो ये पहले स्टैट्यूटरी अथॉरिटी थी, यानी कि एक्ट ऑफ, कोई भी एक एक्ट ऑफ गवर्नमेंट है जो कि ऑब्वियसली पार्लियामेंट में जरूर पास हुआ है, कोई भी एक्ट, ये जरूरी नहीं भी है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन भी हो सकता है कि कोई एक्ट बना हुआ है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन राइट्स एक्ट, ठीक है, तो उसके अंतर्गत ये स्थापना कर दी गई है नेशनल कमीशन। अब आपने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया, यानी कि कोई आर्टिकल के अंदर ही आपने सेटअप की, प्रेसिडेंट विल सेटअप दी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, उसके इतने मेंबर्स होंगे 2 3, और कमेटी ये अपॉइंट करेगी, वो फ्ला फ्ला फ्ला। तो अभी पहले पढ़ते ही कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन itself is containing constitution is itself is providing the powers, providing the authority या authority to the commission, है ना? कॉन्स्टिट्यूशन ने ही उसको अथॉरिटी दी है। तो उसका पॉजिटिव क्या है, हम पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ेंगे। पहला पॉइंट, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देते हो तो क्या होगा, इट
लेट्स टू greater weight, है ना, greater weight in it lets or it provides greater weight in its actions. Having greater weights in action in against other authorities, है ना। ठीक है, जैसे मैं ये बोल रहा हूँ, अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया तो सबसे पहला जो चेंज आएगा वो ये आएगा कि इसकी बात में वजन आएगा, या कोई भी एक्शन ये करती है तो उसमें वजन आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया और साथ में पहले तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया तो आपको फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू सीक सम रिपोर्ट फ्रॉम द पुलिस, है ना, सो फॉर एग्जाम्पल it gives greater weight, है ना, to its actions against other authorities. For example, vis-a-vis other authorities, not against, vis-a-vis other authorities. For example, if it seeks a report from local police station about any issue, so police station cannot deny or delay in providing the report, नहीं कर सकता, क्योंकि now it has the constitutional status. So अगर आपको संवैधानिक दर्जा मिल गया है, संविधान की आप अथॉरिटी हो, आप संविधान is providing you, giving you that authority. अभी तक संविधान ने नहीं दी थी, now constitution is giving you that authority. तो it gives you greater weight to your actions vis-a-vis other authorities. For example, अगर आप पुलिस स्टेशन में कोई रिपोर्ट ले रहे हो या आप मंत्रालय से ही कोऑर्डिनेट कर रहे हो, मिनिस्ट्री से आप कुछ बोल रहे हो मिनिस्ट्री को कि ये पॉलिसी में ये चेंज होना चाहिए, तो डेफिनेटली कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस के बिना आपकी बात में कोई वजन नहीं हो सकता है, हो भी सकता है, हो नहीं भी हो सकता है, नहीं हो, सामने वाले पे डिपेंड करता है। बट इफ यू हैव बीन accorded constitutional status, then definitely the other authority cannot deny whatever you are saying. It has to obey your orders, it has to, whatever you are saying, it has to be obeyed in that sense only. So it gives greater weight to your actions vis-a-vis the other authority. That is the most important thing. Second thing, if it is granted constitutional status, then it can enforce its orders. ठीक है, it can enforce its orders and penalize in terms of monetary penalty in case of non obeying of its orders, है ना, not following of its order. पावर्स ऑफ ए सिविल कोर्ट, जो एक सिविल कोर्ट की पावर्स होती हैं वो इसको मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस आपको मिलेगा तो आपको मान लो इफ यू वांट टू हैव अटेंडेंस ऑफ ए पर्सन और वो बंदा नहीं आ रहा आपके पास, तो आप पेनलाइज कर सकते हैं। तो आप यानी कि अपने ऑर्डर एनफोर्स कर सकते हो। आप गवर्नमेंट को कोई ऑर्डर नहीं कर सकते, गवर्नमेंट तो अपने हिसाब से चलेगी, ठीक है ना। मान लीजिए किसी को कंपनसेशन देना हो विक्टिम को, तो आप वो ऑर्डर नहीं कर सकते हो, बट हाँ प्राइवेट पर्सन को यू कैन पेनलाइज इफ दैट पर्सन इज नॉट ओबेइंग योर ऑर्डर, सो यू कैन एनफोर्स योर ऑर्डर। बिकॉज पेनलाइज कैसे करोगे, यू कैन अप्रोच द कोर्ट, यू कैन
put a fine on the person, you can, there is no means of, because you are granting the powers of a civil code, so you can directly issue notice to the person, imposing fine on the person, and order the person to, you know, to deposit the fine within these many days. Plus you can enforce the orders. What orders? To present before him, इनकी 10 दिन में प्रेजेंट होना है तो आपको होना पड़ेगा. उसके अलावा प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना चाहते हो अपने फ्रंट में तो वो आपके समक्ष होगा. देन रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट. एफिडेविट में एफिडेविट में जो भी लिखा है तो उसको आप एविडेंस के तौर पे आप मान सकते हो. ठीक है ना. आपके एक समक्ष कोई भी बंदा अगर कोई भी बयान देता है तो उसको दैट विल बी कंसिडर्ड एज ए एविडेंस माना जाएगा और वो अनफोर्सेबल होगा किसी भी कोर्ट में. तो जो भी पावर्स होंगी सिविल कोर्ट की वो आपको मिल जाएंगी. और साथ में आपकी जो मैंने बताया था कि अगर आप कुछ भी गवर्नमेंट को बोलते हो तो वो ज़्यादा वेट कैरी करेगा. आपकी बात टालनी आसान नहीं होगी गवर्नमेंट के लिए. तो इट कैन एनफोर्स इट्स ऑर्डर्स एंड पेनलाइज द ऑफेंडर्स. देन थर्ड पॉइंट, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस आएगा तो जो फंड्स हैं, है ना, ग्रांटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल विल एंश्योर डिवोल्यूशन ऑफ फंड्स टू इट. तो डिवोल्यूशन ऑफ फंड्स is now comes under the purview of parliament, which becomes नॉन वोटेबल. ठीक है ना, नॉन वोटेबल बन जाएगा, उसके ऊपर वोट नहीं होगी अब. that is the charged fund. Charged. In addition to it, free from पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल. ठीक है ना. अभी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है वो किसके अंडर में, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करता है. बट इफ यू हैव बीन ग्रांटेड द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देन यू हैव टू रिपोर्ट टू द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट को रिपोर्ट करना होगा आपको. आप अब किसी सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट नहीं करोगे. ठीक है ना. So granting constitutional status will free yourself from political bureaucratic control, because now you have to report to parliament. Reporting to parliament on your working, जो भी आप काम करोगे you have to report to the parliament. ठीक है ना. उसके अलावा फंड्स भी मिल गए. अगर फंड्स कैसे मिल गए, दैट विल बी नॉन वोटेबल. वोट नहीं होगा, काट छाट नहीं होगी आपके उसके ऊपर, फंड्स के ऊपर, बिकॉज यू आर ग्रांटेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस. उसके अलावा अथॉरिटी टू अपॉइंट इट्स, एक सेक्रेटरीट मिल जाएगा. अपॉइंट इट्स ओन स्टाफ. यू विल बी हैव योर ओन सेक्रेटरीट मिलेगा. कैन अपॉइंट योर ओन स्टाफ फॉर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, कुछ इन्वेस्टिगेशन करना हो, है ना, इन्वेस्टिगेशन, और रिव्यू दी पॉलिसीज को रिव्यू करने के लिए. एनफोर्समेंट ऑफ ऑर्डर्स, जो भी ऑर्डर एनफोर्स करने हैं वो ऑर्डर एनफोर्स करने के लिए आपके पास स्टाफ होगा. रिव्यू दी पॉलिसीज, सबमिशन ऑफ रिपोर्ट्स एटसेट्रा. ठीक है.
उसके अलावा अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलेगा, बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं। ब्रॉड बेस्ड सिलेक्शन कमेटी होगी, जो सिलेक्शन कमेटी, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलेगा तो एक सिलेक्शन कमेटी का भी गठन करना पड़ेगा टू अपॉइंट इट्स मेंबर्स, इसके मेंबर्स को अपॉइंट करने के लिए, इट्स मेंबर। तो डेफिनेटली अगर मेंबर्स को अपॉइंट करने के लिए ब्रॉड बेस्ड सिलेक्शन कमेटी होगी तो डेफिनेटली जो बायसनेस है मेंबर्स को अपॉइंट करने में वो ख़त्म होगी और ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होगा सिलेक्शन का। मेंबर्स को अपॉइंट करने के लिए जो होगा तो मेंबर्स भी अच्छे अपॉइंट होंगे और वो डेफिनेटली वुमेन के वेलफेयर के लिए ज़्यादा अच्छी तरह काम कर पाएंगे। इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है, because you have been granted the constitutional status, so now whatever reports you are giving to the government, so now it has to be, now government has to produce your reports before the parliament. So annual reports has to be have to be presented before the parliament, ठीक है, parliament, mentioning your work, recommendations to the government, and along with action taken report of the government. Mentioning the accepted recommendations and in case of non-acceptance, the reason behind such non-acceptance, So now government is now, because it has to report to the parliament, National Commission for Women, and therefore the reports and whatever recommendations it has given to the government, so in the form of report, the reports have to be presented before the parliament, and government has to, along with that report, government has to submit a action taken report also, mentioning the recommendations of the National Commission for Women which it has accepted, and if it is not accepted, then what are the reasons behind such non-acceptance of the recommendations. So definitely it puts a pressure on the government to accept the recommendations. So मोटे तौर पे आप बोल सकते हैं कि the recommendations will become binding, क्योंकि अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आपको बताना पड़ेगा कि क्यों एक्सेप्ट नहीं किया आपने। तो रिकमेंडेशंस विल बिकम बाइंडिंग। अभी एडवाइजरी थी तो आप एडवाइजरी से बाइंडिंग हो जाएगी रिकमेंडेशंस। तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि जो आप एडवाइजरी बॉडी थे तो आप एडवाइजरी बॉडी से एक्शन बॉडी बन जाओगे, एक्शनिंग बॉडी, व्हाट कैन आई से, और बाइंडिंग, एडवाइजरी रिकमेंडेशंस और बाइंडिंग रिकमेंडेशंस, एडवाइजरी टू बाइंडिंग, ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव्स कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलने पे आपको मिल जाएंगे। अब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलने के बावजूद भी कुछ इशू हो सकते हैं, जो कि हम 2-3 लाइंस में समराइज करेंगे, ज़्यादा नहीं लिखेंगे, क्योंकि डेफिनेटली ग्रांटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस
will give the teeth which is required for women commission to to ensure the welfare of women. But there are still some issues जो गवर्नमेंट को स्पेसिफिकली अगर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे रहा है तो भी हो सकता है गवर्नमेंट को अलग से देने पड़े। एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया नेशनल कमीशन फॉर वुमेन को, उसके बावजूद इसकी रिकमेंडेशंस जो है वो बाइंडिंग नहीं होती हैं, है ना। मैंने कहा मोटे तौर पे बाइंडिंग है बट फुल्ली बाइंडिंग नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलने के बावजूद इसकी रिकमेंडेशंस दे आर नॉट बाइंडिंग। तो गवर्नमेंट अगर बाइंडिंग करती है रिकमेंडेशंस तभी ये ज़्यादा इंश्योर कर सकती है वुमेन का वेलफेयर। ठीक है, उसके अलावा इन्वेस्टिगेशन जो होती है क्राइम की, जो इन्वेस्टिगेशन है, अगर ये कुछ इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वैसे तो पुलिस ही करेगी इन्वेस्टिगेशन, बट इफ इट इज डूइंग सम इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम, so its findings should be enforceable होनी चाहिए बाइंडिंग्स टू दी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज, जो कि नहीं होती है। और मैं आपको बताऊं, जो हमारी फॉर्मर नेशनल वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर थी मेनका गांधी जी, उन्होंने एक कानून पास करने की बात कही भी थी पार्लियामेंट में, बट वो नहीं हुआ था। कि वो चाह रही थी कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन को इन्वेस्टिगेशन की, सर्च की पावर्स दे दी जाए, वो सर्च कर सके प्रेमिसेस को, वो इन्वेस्टिगेट कर सके और साथ पे वो अरेस्ट भी कर सके। बट वो पावर्स जो हैं वो तो पुलिस की हैं, वो तो मिलेंगी नहीं, ऑब्वियसली अरेस्ट तो नहीं करने की पावर्स मिल सकती, बट जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम है वो ये कर सके, वो तो अब कर पाएगा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिलने के बाद। बट इसकी फाइंडिंग्स शुड बी एनफोर्सेबल होनी चाहिए। अगर उसको पता लगा है कि फला बंदे ने गलती की है, तो वो पुलिस अथॉरिटी माने कि हाँ भी फला बंदे ने गलती की है, एंड इट्स फाइंडिंग शुड बी मेड पब्लिक, फाइंडिंग शुड बी इन्फोर्सेबल एंड शुड बी मेड पब्लिक टू एंश्योर ट्रांसपेरेंसी। जैसे मैंने बताया था कि अभी रिकमेंडेशंस कैरी मोर वेट, बट स्टिल इट्स रिकमेंडेशंस वो बाइंडिंग नहीं होती हैं। गवर्नमेंट एक्शन टेकन रिपोर्ट में लिख सकती है कि भाई ये रिकमेंडेशंस आई एम नॉट एक्सेप्टेड, तो हम कह रहे हैं कि इसकी रिकमेंडेशंस बाइंडिंग होनी चाहिए, प्लस उसके अलावा इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम, सो इट्स फाइंडिंग शुड बी एनफोर्सेबल टू द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज एंड शुड बी मेड पब्लिक टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, तो ये अगर आप कर देंगे तो जो हम बात कर रहे हैं जेंडर जस्टिस की, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन की, क्योंकि आप जानते हैं जैसे निर्भया केस हुआ था तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन कुछ नहीं कर पाई थी अगर पब्लिक आवाज़ ना उठाती तो। या हमारे देश में पता नहीं कितने केसेस होते हैं वुमेन को असॉल्ट वाले, या फिर बहुत क्राइम अगेंस्ट वुमेन होता है। जैसे मीटू मूवमेंट चला था, इसमें बहुत सारी वुमेन ने आवाज़ उठाई थी अपने खिलाफ, जो उनके खिलाफ जो क्राइम हुआ था, बट कुछ नहीं हुआ उसका फाइनली, क्योंकि हमारे यहाँ जो अथॉरिटी अभी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन वो प्योरली टूथलेस बॉडी है। तो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे भी रहे हो तो भी आपको बाइंडिंग रिकमेंडेशंस करनी चाहिए और इसकी फाइंडिंग्स को पब्लिक करना चाहिए रिपोर्ट को। और इसकी फाइंडिंग्स जो भी हो, इन्वेस्टिगेशन एक तो ये खुद कर पाए, इसका अपना स्टाफ हो इन्वेस्टिगेशन करने का, और साथ में इसकी फाइंडिंग्स जो भी इन्वेस्टिगेशन करे वो एनफोर्सेबल हो, यानी कि जो पब्लिक अथॉरिटी है, पुलिस अथॉरिटी एनफोर्स तो वो करेगी, बट
पुलिस अथॉरिटी इसकी रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट करे और उसकी रिकमेंडेशंस के हिसाब से कार्रवाई भी करे, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से। तभी हम क्राइम को कंट्रोल कर पाएंगे और वुमेन को एम्पावरमेंट दे पाएंगे। ठीक है, तो अगर हम ये कर पाते हैं तभी हम we can ensure the empowerment of women. With this, I'll move to question number 16. So if you like my lecture, kindly अगर आपको अच्छा लगा तो kindly subscribe to my channel, like my lecture also, and kindly provide your feedback and comments over whatever points I am raising in my lecture. तो जो भी मैं पॉइंट्स दे रहा हूँ तो काइंडली उसके ऊपर फीडबैक दें। थैंक यू।